Good morning, students. This is the video from the chapter Square and Square Roots, and today we will be discussing properties of some square numbers. Suppose you find a square of 15. 15 can be written as 15 square can be written as 15 into 15, that is equal to 225. Then you will find that the digit at the unit place is among 0, 1, 4, 5, 6 or 9. You find a square of 10. 10 into 10, that is 100. Digit at unit place is 0. 11 square, 121. At unit place 1. 12 square, 144. Unit place 4. You see that all the numbers which I have squared have unit place as 0, 1, 4, 5, 6 और 9. इन्हीं बीच के नंबर में से कोई एक नंबर होगा at the unit place. The second property, square of an even number is always even, and square of an odd number is always odd. Like 12 square, 144. 12 is even, square is also even. 16 square, 256. This is even. 16 is even, 256 is also even. 13 square, 13 is odd, square is 169, it is also odd. 19 square, 361. 19 odd है तो 361 भी क्या आया, odd आया है. Square of an even number is always even, and square of an odd number is always odd. Let's solve some questions on square roots. You have to find the square root of 0.1764. 0.1764, first eliminate the decimal. You can write it as 1764 by 10,000. आप पहले डेसिमल हटाएं, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो यू हैव जस्ट प्लेस दिस कवर. 1764 by 10,000 इज इन स्क्वायर रूट. आप इनको इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं. इफ़ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट ए बाई बी, इसको आप अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी अलग अलग इसको लिख सकते हैं. ठीक है, तो 1764 का अलग स्क्वायर रूट और 10,000 का अलग स्क्वायर रूट. 1764 का प्राइम फैक्टराइज किया गया. we have got the number 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7. Instead of 1764, what we have written the prime factors of 1764. 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7. And from we have prime factorized 10,000. 10,000 का prime factors क्या break किए, 10 into 10 into 10 into 10. We have written the prime factors of 10,000. अब 176 को 4 को prime factorize किए हैं, तो when a pair will be there, one number will come out. Since 2 is in pair, therefore 1 2 has come out. Since 3 is in pair, 1 3 has come out, and 7 is in pair, therefore 1 7 has come out in the numerator. And in the denominator, this 10 is in pair, therefore 1 10 has come out, and this 10 is in pair, therefore 1 10 has come out. If you multiply the numerator, you will get 42, and you multiply the denominator, 10 into 10, that is 100. 42 by 100 equals to 0.42. Therefore the square root of 0.1764 is equal to 0.42. The second question, you have to find the square root of 8 integer 135 by 225. You have to find the square root of 8 integer 136 by 225. If you write it in fraction form, you will get 1936 by 225. You have to find the square root of 1936 by 225. आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं. ये पूरे में स्क्वायर रूट लगाया हुआ है, तो आप इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं. लाइक ओवर हियर आई हैव रिटन अंडर रूट ए बाई अंडर रूट, ये पूरे ए बाई बी में पूरा अंडर रूट अगर है तो अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी. इसको ऐसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है. 1936 इज प्राइम फैक्टराइज इन द फॉर्म 2 into 2 into 2 into 2 into 11 into 11, and 225 is prime factorized as 5 into 5 into 3 into 3. So instead of 1936 we have written the prime factors 2 into 2 into 2 into 2 into 11 into 11, और नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो 225 था उसके प्राइम फैक्टर्स 5 into 5 into 3 into 3. अब इन दोनों 2 से एक 2 बाहर आएगा. since 2 is in pair, 1 2 has come out. from these to 2, 1 2 has come out, and from these to 11, 1 11 has come out. in the denominator part 225 जो फैक्टर्स हैं, इन दोनों 5 से एक 5 बाहर आया, और इन दोनों 3 से एक 3 बाहर आया. इफ़ यू मल्टीप्लाई the numerator, 2 into 2 into 11 you'll get 44, and if you multiply the denominator 5 into 5, that is 15.
44/15, and if you write in mixed fraction form, you'll get 2 integer 4/15. Thank you. One more thing, these two are assignment pages. Write these two, fare these two pages in your notebook copy, fare notebook copy, and after this proceed with the homework. First question, you have to find the value of under root 248 plus under root 52 plus under root 144. ऐसे ये कंसेक्यूटिव रूट्स हैं. यू स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम द लास्ट टर्म, सबसे आखिरी वाले टर्म से स्टार्ट करना सॉल्व कीजिए. फर्स्ट देयर इज अंडर रूट 144. अंडर रूट 144 किसका स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर है? यू कैन राइट 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12. तो अंडर रूट 144 भैया, अंडर रूट 144 कैन बी रिटन एज 12. इसकी जगह पे क्या हम लिखें? 12 लिखें. ये अंडर रूट 144 खत्म हो गया, इसकी जगह पे क्या आ गया? 12 आ गया. अब यहाँ बचा क्या है? 52 प्लस अंडर रूट 144 की जगह पे 12 आ गया. 52 प्लस 12, 52 प्लस 12 कैन बी रिटन एज 64. अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस 12 दैट इज अंडर रूट 64. ये अंडर रूट 64 आया. अंडर रूट 64 है, अंडर रूट 64 कैन बी रिटन एज 8. रूट 64 कैन बी रिटन एज 8. 8 इंटू 8 दैट इज 64. अब ये रूट खत्म हो चुका है, अब बस एक ही रूट बचा, रूट 248 प्लस 8. रूट 248 प्लस 8, 248 प्लस 8 कैन बी रिटन एज 256, and root 56 is equal to 16. Therefore this root 256 can be written as 16. Next question, find the value of under root 4096 plus under root 40.96. What we have done, we have prime factorized 4096. Upon factorizing you will get that ये दो 2 से एक 2 बाहर आया, ये 2 ये दो 2 से एक 2 बाहर आया, ये दोनों 2 से एक 2 बाहर आया, ये दोनों 2 से एक 2, ये दोनों 2 से 1, और यहाँ पे भी एक 2 बाहर आया. 2 2 4, 8, 16, 32, 64. 4096 is the square of 64. So this can be written as 4096 प्लस, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेसिमल है तो 4096 बाई 100. डेसिमल हट गया, और क्या लिखा जा सकता है इसको? 4096 प्लस, इन दोनों को अलग किया जा सकता है. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैन बी सेपरेटेड. रूट 4096 का वैल्यू कितना है? 64 प्लस इस रूट 4096 का वैल्यू 64 और रूट 100 का वैल्यू जानते हैं 10. 64 प्लस दिस कैन बी रिटन एज 6.4, और यू कैन राइट 64 प्लस 6.4 दैट इज 70.4. अपॉन सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस पार्ट यू गेट 70.4. वन मोर पार्ट, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर. -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1 यू विल गेट 1. 1 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 1 इंटू 1 यू विल गेट 1. आप -1 का स्क्वायर कीजिए तब भी 1 आएगा, 1 का भी स्क्वायर कीजिए तब भी 1 आएगा. -2 का स्क्वायर, -2 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? -2 इंटू -2, माइनस, ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बना? प्लस, और ये 2 इंटू 2 4. पहले साइन मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद आपका अल्फ़ाबेट सॉरी डिजिट मल्टीप्लाई हुआ. माइनस माइनस प्लस एंड 2 इंटू 2 4. आप 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो तो 4 आएगा ही. नेक्स्ट -3 स्क्वायर, -3 का स्क्वायर मतलब -3 इंटू -3. पहले माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ, प्लस हुआ, और 3 इंटू 3 9. -3 का स्क्वायर 9 आया, और 3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है. इफ़ यू फाइंड द स्क्वायर ऑफ -4, -4 का स्क्वायर क्या होगा? -4 इंटू -4, माइनस माइनस when multiplied get becomes plus, and 4 into 4 16. And if you find the square of 4 you will get 4 into 4,
वो भी क्या है 16। मतलब आप 5 का स्क्वायर निकालिए तब 25 आएगा, -5 का भी स्क्वायर निकालिए फिर भी आपका क्या आएगा, देन इवन यू विल गेट 25। सपोज यू आर गिवन अ क्वेश्चन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यू माइट हैव लेसन इन लीनियर इक्वेशन कि अगर प्लस का कोई नंबर है तो इक्वल टू के दूसरे साइड जाता है तो माइनस हो जाता है। अगर माइनस है कोई नंबर में, अगर माइनस साइन लगा हुआ है, इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ अगर कोई नंबर, तो दूसरे साइड इक्वल टू के जाने पे वो डिवाइड हो जाता है, और अगर डिवाइड हो रहा है x के साथ वो नंबर तो दूसरे साइड इक्वल टू के जाने के बाद वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है। एक और रूल है अब कि अगर x के साथ स्क्वायर जुड़ा हुआ है तो इक्वल टू के उस साइड जाने पे, इक्वल टू के दूसरे साइड जाने पे वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो स्क्वायर का जो पार्ट है वो दूसरे साइड गया, वो क्या बन गया, रूट बन गया। ठीक, अब रूट 1 का वैल्यू, रूट 1 कैसे आ सकता है, रूट 1 तो दो चीज़ आ सकता है। रूट 1 या तो आप -1 इंटू -1 कीजिए तब भी आपका 1 ही आएगा, या फिर आप 1 इंटू 1 कीजिए, आप -1 इंटू -1 कीजिए तभी आपका 1 ही रहेगा, या फिर 1 इंटू 1 कीजिए तभी आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर? तो ये 1 या तो 1 इंटू 1 से आया होगा या तो -1 इंटू -1 से, तो दोनों वैल्यूज होंगे। ये जो रूट 1 है 1 + 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। देयरफॉर वी राइट इट एज x इक्वल्स टू +-1। नाउ ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर x स्क्वायर 4 के बराबर है तो x का वैल्यू कितना होगा, वी कैन राइट इट √4। स्क्वायर दूसरे साइड जाके क्या बना, √4 बन गया। तो 4 कहाँ से आया होगा, 4 या तो 2 इंटू 2 करके आप 4 लाए होंगे, या तो -2 इंटू -2 किए होंगे, -2 इंटू -2 करिएगा तब भी 4 आएगा, या 2 इंटू 2 कीजिए, 2 इंटू 2 इफ़ यू मल्टीप्लाई देन यू विल इवन गेट 4, इफ़ यू मल्टीप्लाई -2 इंटू -2 देन इवन यू विल गेट 4। तो या तो इन दोनों 2 से या तो 2 बाहर आया होगा, या फिर -2 इंटू -2 से -2 बाहर आया होगा। तो दोनों हो सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों के हैं, या तो 2 आंसर होगा या फिर -2 होगा। देयरफॉर वी राइट x इज इक्वल टू +2 और -2, और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन राइट +-2। थर्ड क्वेश्चन, x स्क्वायर -17 इज इक्वल टू -1। You take -17 over that side of equal to, it becomes +17, -1 और +17 it becomes 16। अगर x स्क्वायर का वैल्यू 16 है तो x का वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर दूसरे साइड गया, क्या बन गया, रूट बनेगा। इट बिकम्स x इक्वल टू √16। 16 √16 किन दोनों टर्म से आ सकता है, या तो आप 4 इंटू 4 कीजिए, या फिर दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, या तो आप -4 इंटू -4 कीजिए, दोनों टर्म्स में आपका 16 ही आएगा। एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर कि 4 इंटू 4 करने पे भी 16 आता है, -4 इंटू -4 करने पे भी 16 आता है। देयरफॉर 4 इंटू 4 विल कम √16, और अंडर रूट -4 इंटू -4 विल ऑल्सो कम √16। इससे या तो 4 बाहर आया या फिर -4 बाहर आया, यू कैन राइट, या तो +4 होगा या फिर -4 होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो हम क्या किए, दोनों का अगर पॉसिबिलिटी है देन वी राइट +-4। थैंक यू। फर्स्ट write these 2 pages of assignment in your fair copy and then proceed with the homework. Thank you.